السلام علیکم پاکستان، پروگرام نیا سویرا میں آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عریج ندیم اور میرے ساتھ موجود ہیں ندیم عباس۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہر نیا سویرا خوشیوں بھرا ہو۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ اور ندیم صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج 6 فروری ہے اور ہر طرف جو ہے وہ لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے، آسمانوں پہ پتنگیں ہی پتنگیں نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ کو کتنی ایکسائٹمنٹ ہے اس بسنت کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آج بتاؤں آپ کو کہ رات 12 بجے جو ہے نا وزیر اطلاع پنجاب جو عظمیٰ بخاری صاحب ہیں، انہوں نے رات 12 بجے گڈی اڑا کے بسنت فیسٹیول کا افتتاح کیا، بالکل، اور اس کے بعد آسمان میں پتنگیں ہی پتنگیں، لاہور میں ہر طرف بسنت کے جشن، نعرے، ڈھول، ساؤنڈ سسٹم، بھنگڑے، ڈانس، ہر طرف یہی ہے۔ اچھا، اس معاملے میں ویمن بھی کہیں پیچھے نہیں رہی، سائڈ پہ نہیں ہٹی، انہوں نے بھی مطلب طرح طرح کے رنگ برنگے کلرفل لباس پہنے، ڈریسنگ کی ہے، دین مہندیاں لگائی ہیں اور پھر مزے مزے کے جو ہیں وہ پکوانوں کا اہتمام کیا ہے۔ اچھا، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی جانب سے جیسے ہی 12 بجتے ہی یہ پتنگ اڑا کے فیسٹیول کا افتتاح کیا گیا تو پھر سائڈ پہ ہمارے جو ماشاءاللہ منسلے لڑکے ہیں ان کا بھی جوش و ولولہ دیدنی تھا۔ بالکل، جیسے ہی 12 o'clock سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھیں گے کہ آسمان پہ جو ہے پتنگیں ہی پتنگیں نظر آ رہی ہیں اور لاہور جو ہے وہ بسنت کے فیسٹیول میں مکمل طور پہ رنگ چکا ہے۔ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کی ایکسائٹمنٹ کتنی ہے بسنت کو لے کے؟ بسنت میں کو لے کے کیا ہے، بسنت تو بس دیکھیں نا، ابھی جس طرح انسیڈنٹس بھی ہو چکے ہیں، جب آغاز ہی ہوا بسنت کا تو صبح تک رزلٹ بسنت کے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جان جو ہے قیمتی وہ چلی گئی ہے، 8 سے 10 جو ہے نا وہ زخمی ہے۔ اچھا، جس طرح یہ سکھنیر کے قریب یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 25 سالہ جو نوجوان تھا وہ پتنگ اڑانے کے لیے، وہ اس کو اتارنے کے لیے پتنگ کو پکڑنے کے لیے، کٹی ہوئی پتنگ کو پکڑنے کے لیے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بجلی کے کھمبے کے اوپر چڑھ گیا، وہ اتارنے کے لیے پتنگ، اور اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا ہے۔ کریزینس ہے نا۔ اب جہاں پہ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گلشن راوی میں 8 سالہ بچہ جو ہے نا وہ پتنگ کو پکڑتے ہوئے درخت کے اوپر لٹکی پتنگ کو اتارنے کے لیے اوپر چڑھا اور وہ شدید قسم کا گر کے زخمی ہو گیا۔ اچھا، اور گلشن راوی میں 3 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، یہ 3 واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں ایک 8 سالہ وہ بچی جو ہے وہ ارسا شامل ہے، 45 سالہ لڑکا ہے وہ شبیر نامی، اور ایک اور بھی بچہ ہے جو اس معاملے میں جو ہے نا وہ زخمی ہوا ہے۔ مطلب دیکھیں ابھی 3 دن، مطلب کچھ سیکنڈز میں ابھی تو شروع ہوا ہے، شام تک آپ کو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ہی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، قیمتی جانوں کا جانا۔ اچھا، جہاں پہ ندیم صاحب بہت سے لوگ اپنے اپنے کمپلیمنٹس دے رہے ہیں کہ اس میں مریم نواز صاحبہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کہ وہ بندوں کی غلطی ہے جو پتنگ اڑانے کے لیے یا کٹی پتنگ کو اتارنے کے لیے بجلی کے کھمبے پہ چڑھ گئے ہیں، وہ اس میں اتنا کو ان میں جنون آیا ہے۔ تو دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں صرف انہی لوگوں کا جو اس چیز کا شکار ہوئے ہیں ان کی غلطی ہے؟ یہاں پہ کہیں نہ کہیں حکومت کی جانب سے بھی جو ہے نا وہ نااہلیاں، غلطیاں سامنے آئی ہیں؟ حکومت نے تو بسنت کی اجازت دی، جو کہ میں اس حق میں نہیں تھا، اوروں کا نہیں پتا مجھے، میں اس حق میں نہیں تھا کہ یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسری بات، یہ پتنگ اڑانے والے جس طرح مرضی ہو جائے، ان کی ڈور سے جو زخمی ہوگا، جس کو نقصان پہنچے گا، جو جانی نقصان ہوگا، اس کے خلاف کاروائی ہوگی، اس کے خلاف مقدمے ہوں گے۔ کیوں مقدمے ہوں گے؟ میں آپ کو ایک بات واضح بتاتے چلوں کہ جو بھی بازار میں پتنگ خریدنے جاتا ہے، ڈور خریدنے جاتا ہے، اس کا ID کارڈ لیا جاتا ہے، پتنگ اور ڈور کے اوپر QR کوڈ لگا ہوتا ہے۔ جب یہ جس ڈور سے یہ حادثہ ہوگا وہ ڈور سکین ہوگی، جب سکین ہوگی تو جس ڈیلر نے وہ ڈور بیچی ہوگی اس کو ٹریس کریں گے، اس کو ٹریس کرنے کے بعد جب وہ بتائے گا کہ اس ID کارڈ کے اوپر میں نے پتنگ اس فلانے بندے کو دی ہے، اور اس کے اوپر وہ FIR ہوگی۔
अच्छा, पंजाब हुकूमत की जानिब से QR कोड वाला सिस्टम और रजिस्ट्रेशन वाला जो सिस्टम है ये बड़ा अच्छा था, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन एक अपनी जगह पे है, लोगों के अंदर अगेन वही वाला जुनून आ चुका है कि लोग कभी कटी पतंग वो उसको उतारने के लिए चढ़े हैं, बिजली के खंभों तक को नहीं देख रहे, और कभी उड़ाने के लिए कभी डोर फिर रही है। हुकूमत की जानिब से सेफ्टी रॉड्स भी दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाजार में जाए ना जी पतंग खरीदने के लिए, लोग तो मजबूर होंगे, जो गरीब तकबा है ना वो पतंगे ढूंढ रहे हैं, उनको मिल रही हैं तो 800 900 1000 2000 से कम गुड्डा नहीं मिल रहा, तो बच्चे कहां से लेंगे? जो एक गरीब आदमी का बच्चा, जो मजदूर आदमी का बच्चा, जो तनख्वाहदार आदमी का बच्चा, वो पतंग और डोर कहां से लेगा? वो बेचारा भागेगा रोडों के ऊपर पकड़ने के लिए पतंग कटी हुई, और हादसों के शिकार होंगे। अगले बंदे का भी दिल कर रहा है कि वो इस खुशी में, या जो भी हुकूमत की जानिब से भी ये फेस्टिवल शुरू कर दिया गया है, बसंत की खुशी में शरीक हों, लेकिन उनके पास उतना सरमाया नहीं है जिसकी वजह से वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, इस मामले बिल्कुल ज्यादातर वाकया ही ऐसे होंगे, कटी पतंग पकड़ते हुए लोग जो है ना हादसे का शिकार होंगे। ये मेरी बात नोट फराम है, क्योंकि बाजार का हमने विजिट किया, लाहौर की जो सबसे बड़ी मार्केट है मोची गेट, जी वहां पे 3 दिन से पतंगे नहीं मिल रही। अगर पतंगे मिल रही हैं तो जो 200 रुपए वाली पतंग है, 100 रुपए वाली पतंग है, वो 800 900 रुपए की मिल रही है। जो 500 रुपए 600 रुपए 800 रुपए 1000 रुपए का डोर का पिन्ना था, वो 20,000 15,000 25,000 30,000 50,000 का मिल रहा है। तो कौन गरीब आदमी खरीदेगा? कॉस्ट आ चुकी है, वही लोग इसको परचेज कर रहे हैं जिनके पास इसके रिसोर्सेज हैं, और जिनके पास नहीं है वो इन खुशियों में शरीक होना चाह रहे हैं। रिसोर्सेज ना होने के बायस वो फिर इस तरह के हादसात का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मैं मतलब एकदम इतनी शॉक्ड हो चुकी हूँ कि अभी फर्स्ट डे है, कुछ ही जो है वो आवर्स गुजरे हैं और एक कीमती जान गई है, 5 अफराद जो हैं वो इनमें जख्मी हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से सेफ्टी रॉड्स का दिया जाना, और हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कोई भी बाहर जो है वो बाइक पे नहीं आएगा। नहीं देखो ना, हुकूमत ने तो बहुत ज्यादा इकदाम ही किए हुए हैं। फ्री जो बसें हैं उन्होंने वो चलाई हुई हैं बसंत के ऊपर के लोग फ्री सफर करें। यहाँ तक के जो इन ड्राइव सर्विस है वो भी पंजाब हुकूमत ने 3 दिन फ्री की हुई है कि कोई भी बंदा ज्यादातर बाइक ना यूज करे। अगर जो करता भी है तो वो सेफ्टी रॉड लगे हुए हैं, अगर लगे भी हुए हैं फिर भी पंजाब हुकूमत ने फ्री बसें जो हैं वो दी हैं कि जहां मर्जी आए जाएं। 3 जिला में बस सर्विस दी है, लाहौर से गुजरांवाला, शेखुपुरा से लाहौर, कसूर से लाहौर। अच्छा, ये सफरी सहूलियात हुकूमत की जानिब से खुशियों को दुबाला करने के लिए कि हर बंदा फेस्टिवल जो है ये बसंत का अपने अपने तरीके से एंजॉय करे, चाहे वो खाने पका के करे, चाहे वो जो है वो म्यूजिकली सिस्टम को एंजॉय करे, या पतंग उड़ा के करे। अच्छा, अब ये सिस्टम आ जाता है, अभी जिस तरह ये हादसात हुए हैं उसके थोड़ी देर बाद ही मरियम नवाज साहिबा जो हमारी वो चीफ मिनिस्टर है उनकी जानिब से, और जो हमारी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है। मरियम नवाज कहती हैं कि SOPs पर अमल करें और बसंत को महफूज बनाएं। इन इंसिडेंट्स के बाद SOP पे अमल भी करेंगे तो फिर भी हादसा होगा। देखो अभी SOP पे तो अमल कर रहे हैं, मैं वही अमल कर रहे हैं। जो हादसा हुआ है वो तो पतंग पकड़ने के लिए बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ा बंदा, वही ना, जो और वो करंट लगने से जान बाक हुआ, डोर फिरने से नहीं हुआ। वीवर्स, मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली सिखों का एक त्यौहार है बसंत, जो हमारे पंजाब में अगेन आफ्टर 25 इयर्स हम इसको अगेन सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि जिस तरह मेरी भी फर्स्ट जो है वो बसंत है, और आपकी पहली जो बसंत आपने देखी होगी उसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। और ये 3 दिन की बसंत, जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी इससे मुतासिर डेफिनेटली होगा कि वो बाहर नहीं निकल सकता। हम इस पे भी बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस हाजिर होते हैं। वीवर्स, लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूं राजा जी।
لیے لے کے آ رہے ہیں شو گوم برابر، انٹرٹینمنٹ سے بھرپور۔ مسکرانے کی وجہ تم ہو، جائے نہ جائے نا۔ اب بھائی نے نویں موڑ دیا لیتے قبرستان چل گئے، میں کہتا کدھر کہتا شاخ چیک کرنے او یار یہ نویں موٹر سائیکل لئی تی رات نو پٹرول دی جگہ پانی پائی جاوے، ایک بندہ کہندا خیر ہے، کہندا چپ کر جا، اینوں کیڑا پتہ لگنا۔ بوم برابر۔ वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं। बातचीत हमारी चल रही थी बसंत के हवाले से, और मैं आपको बता रही थी कि बेसिकली एक सिखों का त्यौहार है जिसको हम लोग अगेन 25 साल बाद वापस मना रहे हैं। लोगों के अंदर जो एक इस हवाले से जोशो वलवला था, क्योंकि पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन्स किए जाते थे बाकायदा पतंगों के हवाले से, लेकिन वो हुकूमत की जानिब से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जाना, 3 दिन का एस्टीमेट दिया जाना, और देन वो 3 दिन तो बहुत दूर की बात, अभी कुछ ही घंटे गुजरे हैं तो ये हादसा जो है वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस बारे में डिस्कशन हो रही थी। वज़ीरे जो इत्तलात हैं हस्मा बुखारी, वो कहती हैं कि कोई भी किसी को तंग नहीं कर रहा, तमाम लोग अपनी मौज मस्ती में हैं और बसंत को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट्स नहीं गई कि ये हादसे हुए हैं? नहीं, देखें, तंग किसी ने किसी को क्या करना है। ये त्योहार पे कोई गरीब बंदा भी है तो उसको कौन तंग कर सकता है? तंग तो कोई नहीं कर सकता। लोग मौज मस्ती करते हैं। देखें, जब 12 बजे शुरू हुआ है तो हर तरफ लाइटों का समा, ढोल का, भंगड़े, डीजे का समा था। मैं वहाँ पे मौजूद था। तकरीबन रात को शाही किले के पास इतना ज्यादा लोगों का जश्न था। ढोल की ताम पे लोग भंगड़े डाल रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। अच्छा। खाने के स्टॉलों पे रश शुरू हो गए थे। ठीक है, हर तरफ आसमान पे पतंगे ही पतंगे, लाइटिंग ही लाइटिंग। देखे ना, लोग तो जश्न मनाएंगे जिनके पास पैसा है। लोगों ने इस एक्साइटमेंट को ईद के फेस्टिवल्स की तरह, ईद के त्योहारों की तरह मनाना शुरू कर दिया है। लोगों में ये क्रेज है। मैं कहता हूँ कि लाहौर में ईद जो है ना हमारी, उससे भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पैसा लगा दिया हुआ है। यहाँ पे ईद से ज्यादा लोग जश्न मना रहे हैं। अच्छा, अगेन वही बात आ जाती है, हुकूमत की जानिब से जो धाती तार है और नायलॉन वाली डोरें हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। दफा 144 भी नाफिज की गई है। लेकिन अगेन डिफेंस फेज 5 में भी जो है ये हादसा रूनमा हुआ है, जबकि ये डीएचए डिफेंस वाली साइड पे पतंगबाजी पे जो है ना वो पाबंदी लगाई गई थी। जी बिल्कुल। तो वो अगेन वो डोर फिरी और फिर लोग जो है, ये बच्चे हैं, वो हादसा का शिकार हुए हैं। अब मेरा जो आपके साथ क्वेश्चन है वो ये है कि दफा 144 का निफाज है और 10 जगहों पे पंजाब के शहरों में पाबंदी भी है, उसके बावजूद भी 10 शहरों में नहीं है, 10 मकाम आता है लाहौर में ऐसे जिनमें पाबंदी है। अच्छा। पतंग उड़ाने के हवाले से वैसे लाहौर के अलावा पंजाब के हर जिला में पतंग उड़ाने की पाबंदी है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो गुजरांवाला और भी जो शहर है वहाँ से डॉक्टर्स भी मंगवाए गए हैं। जी बिल्कुल। लाहौर में इस फेस्टिवल में कि अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात रूनमा होते हैं तो चलो पुलिस की जानिब से भी हाई अलर्ट है, पुलिस की सिक्योरिटी, और देखा जाए तो डॉक्टर्स भी जो है वो हाई अलर्ट कर दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब दफा 144 का निफाज होना, लेकिन अगेन ये जो डोरें फिर रही हैं, क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या ये केमिकल्स वाली डोरें हैं? क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो नायलॉन नहीं, देखे ना, केमिकल डोरों पे पाबंदी तो है, लेकिन बहुत से लोग जो है ना, मेरा आइडिया है कि वो यूज जरूर करेंगे ये डोर। फिर वो अभी तो वाला सिस्टम कहाँ गया? बस ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब चलता है, जिसके पास पैसा है हर चीज चलती है। सही। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज जो शाम तक है लाहौर में 5 से 8 लाख तक जो गाड़ियां ना लाहौर में एंटर होंगी, जो स्पेशल लोग बसंत मनाने के लिए आ रहे हैं।
हाँ, जिस तरह हम लोगों ने भी, आपको पता है कि पिछले दिनों में कवरेज की है, वो जिस तरह वो ना एक शख्स था, वो बता रहा था कि वो आउट ऑफ कंट्री से आया है, मतलब यूके से आया बहुत सी फैमिलियां बाहर आउट ऑफ कंट्री से आएंगी लाहौर में बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन फिर अगेन मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि बसंत में जिन लोगों के जिस तरह भी घर उजड़ चुके हैं, आज भी एक घर जो है वो उजड़ा है, बाकी पेरेंट्स जो हैं वो इस परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं कि किसी बच्चे की टांग टूट चुकी है, किसी की बाजू टूट चुकी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, किसी को इंजरीज आई हैं, तो उनके लिए बसंत का फेस्टिवल एक फेस्टिवल नहीं है, उनके लिए एक जानलेवा खेल साबित हुआ है। जी बिल्कुल, तो ऐसा हुकूमत ने फिर वही मैं बात करूंगी जो हम लोग पहले भी करते रहे हैं कि हुकूमत ने अगेन जो है वो एक चिंगारी वाला काम किया है कि जब लोगों के अंदर से ये क्रेज खत्म हो रहा था तो अगेन इस चीज को स्टार्ट करना। अब जो 3 दिनों के बाद इस चीज को सेलिब्रेट करेगा, अगेन उस पे एक्शन होगा। जी बिल्कुल और होगा। फिर वो अगेन उनकी जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हुकूमत को क्या सूझी थी, हुकूमत के पास और भी काम थे। अच्छा, दूसरी जानिब अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि हम लोग जो है वो फेस्टिवल में सियासत को लेके ना आए। अब देखिए, फेस्टिवल का त्यौहार है, अपनी मर्जी से एंजॉय करना, लेकिन इसमें भी हुकूमत की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किसी भी सियासी बंदे की तस्वीर नहीं लगा सकते। इस हुकूमत ने, मैं आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे लाहौर की मालूमात लेंगे, जहां से भी किसी सियासी तस्वीर या कुछ भी एक्टिविटी हुई उनके खिलाफ भरपूर तरीके से ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने सियासी, एक तरफ कह रहे हैं कि सियासी अमल नहीं है ये, और दूसरी तरफ तस्वीरें ना लगाने देना, ये इट्स द बिगेस्ट ब्लंडर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर पाबंदी ना होती ना, हाँ जी, तो लाहौर के पूरे आसमान में तकरीबन 90% जो है ना इमरान खान की फोटो वाली जो पतंगे हैं ना वो उड़ती। और अब जितनी मर्जी पाबंदी है ना, बहुत से मकामात पे ये जो पतंगे हैं ना इमरान खान की सियासी तस्वीर वाली, कैदी नंबर 804 वाली जो है ना, ये उड़ेंगी, क्योंकि तस्वीर पे पाबंदी लगाई है, हिंसों पे पाबंदी नहीं लगाई गई। 804 कैदी नंबर लिख के लोग पतंगे उड़ाएंगे, जरूर उड़ाएंगे। ये मेरा आइडिया है। ये बिल्कुल अपने अपने हम लोग एनालिसिस तो रिव्यू सामने रख ही रहे हैं पब्लिक के सामने, लेकिन अब द मेजर पॉइंट इज हियर कि जिस तरह कैदी नंबर 804 की आपने बात की है, तो देखिए एंजॉयमेंट का त्यौहार अगर हुकूमत की जानिब से दिया गया है तो ये सियासी फिर चीज़ इसमें नहीं, पॉलिटिकल चीज़ नहीं लानी चाहिए थी। हर बंदे की अपनी अपनी एक एक्साइटमेंट थी, वो चाहे कैदी नंबर 804 लिखता, कोई पीपल्स पार्टी की पिक बनाता, कोई PMLN की बनाता, लेकिन वो अगेन आ जाता है कि क्या हुकूमत को अभी भी खौफ है कि लोगों के दिलों में इमरान खान साहब की आज भी जो है वो पॉपुलैरिटी वैसी ही है जैसे वो पहले थी, बल्कि उससे ज्यादा ही नहीं। हुकूमत को ये बात का भरपूर तरीके से पता है कि है इमरान खान पॉपुलर लीडर है, पब्लिक उसके पीछे है, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं है। अभी देखें 8 तारीख को धरने की कॉल दी हुई है, अभी बसंत भी है, बसंत के नाम पे PTI के लोग लाहौर में ढेरों दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कल शेर अफजल मरवत PTI रहनुमा आया, उसका बयान भी सामने आ गया कि मुझे नहीं लगता कि लोग निकलेंगे। अच्छा। लेकिन उसने कहा कि 8 तारीख को बरोज इतवार मैं भी लाहौर में गुड्डी उड़ाने जरूर जाऊंगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने ये भी कहा कि अगर PTI के मेंबर्स जो हैं वो 8 फरवरी को नहीं निकलते तो हुकूमत जो है वो पीछे चले जाएगी, बैक फुट पे चले जाएगी। अब आपको भी पता है और मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इमरान खान साहब बेशक जेल में हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी पहले की निस्बत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि वो अभी तक जेल में जिंदगी गुजार रहे हैं, और बाकी लीडर्स की तरह नहीं है कि अगर उनको पनिशमेंट हुई है तो वहां से भाग जाएं, वो वहीं पे हैं। अब शेर अफजल मरवत का ये जो बयान है कि हुकूमत के पीछे अगर लोग, ये PTI के पीछे अगर मेंबर्स नहीं निकलते खान साहब के लिए तो हुकूमत पीछे चले, इनकी जो है पार्टी वो पीछे चले जाएगी, उसका वो इतना एक इमेज नहीं रह जाएगा। इस बात का आप थोड़ी सी डिटेल में बताएं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बसंत, अब जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं खुद भी गुड्डी उड़ाने के लिए जो है वो लाहौर में आऊंगा, तो ये समझ लें कि अब ये वो खान साहब के लिए आ रहे हैं या पतंगबाजी के लिए आ रहे हैं? नहीं, देखिए पार्टी के काल है धरने की, लाहौर की तरफ बढ़ने की, तो वो जरूर आएंगे। अभी उन लोगों को आसानी होगी है, पहले हुकूमत जो थी कंटेनर लगा के 2-3 दिन पहले रास्ते बंद कर देती थी, अभी तो हुकूमत ने खुद ही फ्री सर्विस दे दी है गाड़ियों की, जो मर्जी आए।
ہاں یہ چیز ٹھیک ہے, جو مرضی آئے, ابھی تو پابندی بھی نہیں ہے انٹری کی, تو 8 تاریخ کو لوگ پہنچیں گے, ڈیفینیٹلی پہنچیں گے نا لوگ. خان صاحب کے پیچھے اگین وہی بات ہے کہ خان صاحب کے لیے لوگ پاگل ہیں, آج بھی لوگ پاگل ہیں. اچھا میڈم, آج بسنت ہے, بسنت کے حوالے سے ہم بات کریں کہ آپ بسنت کس طرح منا رہی ہیں؟ میں بسنت بالکل بھی کسی طریقے سے نہیں منا رہی. ہاں صرف یہ چیز مجھے کیونکہ بسنت بالکل نہیں اچھی لگتی, بہت سی جانیں جاتی ہیں, اور جس طرح ہم سٹارٹنگ سے رپورٹس کرتے آ رہے ہیں, نیوز ہائی لائٹس کرتے ہیں, تو جب وہ ایک چیز دیکھتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ڈور پھرنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا ہے, تو دل جو ہے وہ بالکل خون کے عنصر ہوتا ہے, یا وہ مطلب ورڈز نہیں ہے کہ جو میں ڈسکرائب کر سکوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کھانا پینا ہوگا, موج مستی ہوگی, انجوائمنٹ ہوگا, فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ ہوگا, بٹ وہ پتنگ بازی والا سسٹم بالکل بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کس حوالے سے کس طرح کی پریپریشنز ہیں؟ آپ نے بھی کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ پتنگ اڑانی ہے, گڈی اڑانی ہے, یا کیا؟ ہم نے تو رات کو, ویسے تو بسنت کے خلاف ہیں لیکن بچپن میں کافی پتنگ اڑاتے تھے, تو آج ہم نے بھی تیاری کی ہوئی ہے انشاءاللہ, ڈھول بھنگڑا ڈی جے کے ساتھ پتنگ وغیرہ اڑائیں گے. اٹ مینس کہ آپ حکومت کی اس چیز کے ساتھ متفق ہیں؟ فی الحال تو متفق ہیں, ویسے ہیں خلاف کہ جانی نقصان ہوں گے, لیکن پھر بھی لوگوں کو دیکھ کے, دوستوں کو دیکھ کے نا, پھر ہم یہ جو ہے نا بسنت کا تہوار آج اچھے طریقے سے جو ہے نا منائیں گے. ڈھول وغیرہ, ساؤنڈ سسٹم وغیرہ, کباب وغیرہ جو ہیں, کھانے پینے کے سامان, سب کچھ ہم نے انتظامات کیا ہوا ہے, تو آج ہم بھی اس کا حصہ بنیں گے. سمجھ آتی ہے, لیکن عورتوں میں بھی بسنت کے حوالے سے بڑا کریز ہے. میں نے وہی عورتیں زیادہ عورتیں, بہت سی عورتیں ہیں جو پتنگ بازی کر رہی ہیں, بینگلز اور پراپر ایک سجاوٹ ہے. رات کو اگر آپ ادھر اندرون لاہور کی طرف ہوتی تو آپ کو پتا چلتا کہ کتنی فیملی, کتنی لڑکیاں جو ہیں پتنگ بازی میں حصہ لے رہی ہیں. بہت سے خواتین نظر آئی ہمیں پتنگ اڑاتے ہوئے. جس طرح مطلب وزیر اطلاعات ہماری نے بھی جو ہے وہ پتنگ بازی کا وہ بھی تو عورت ہے نا, سب سے پہلے تو اس نے اپنی جگہ پہ, لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا انجوائمنٹلی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک سامنے رکھ دیا ہے کہ دیکھیں بینگ اے وومن میں بھی جو ہے وہ بسنت میں برابر کی شریک ہوں. سیاسی چیز ایک طرف ہے, لیکن اس سے پہلے وہ ایک عورت ہے, اور انہوں نے اس بسنت کا اظہار بڑی خوشی سے کیا ہے, اور جیسے ان کی جانب سے اظہار کیا گیا تو پھر پاکستانی عوام کہاں پیچھے رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے لاہوریے جو ہے وہ اس چیز میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں. تو مطلب دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ پراپر ایس او پیز پر عمل درآمد حکومت کی جانب سے تو کافی سیفٹی اقدامات بھی کیے گئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے حکومت کی جانب سے کافی ایکسٹرا نفری جو ہے نا پولیس کی وہ لاہور میں تعینات کی گئی ہے, سخت سکیورٹی کے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہاسپٹلوں میں ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے, ایکسٹرا ڈاکٹر جو ہے نا وہ تعینات کیے ہوئے ہیں, 1122 کی نفری ایکسٹرا جو ہے نا وہ تعینات کی ہوئی ہے. کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے حکومت نے بھرپور طریقے سے انتظامات کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو, عوام کو غلط قسم سے روکا جائے, ہوائی فائرنگ سے روکا جائے, جو کیمیکل والی ڈور ہے اس سے روکا جائے, جیسے کہ ڈرون کیمروں کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کہ اس کے ذریعے بھی پتا چلے گا کہ کون غلط کیا استعمال کر رہا ہے, اس کے خلاف ہی اسی وقت فی الفور کارروائی ہوگی. اچھا دیکھا جائے, چلیں ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے, لیکن گورنمنٹ نے عوام کو اگین خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کر دیا ہے. وہ اپنی جو ہے وہ اپنا ایک لائف سٹائل ہے ہر بندے کا کہ وہ اس کو انجوائے کرے یا نہیں کرے, اس کو لائک کرتا ہے یا ڈس لائک کرتا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بندے کی اپنی جو ہے نا وہ بہاف پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ کس چیز پہ جا رہا ہے. 3 دن یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے تمام ممبران کو دیے گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو انجوائے کریں, لیکن کچھ لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے کہ ان کا جو ہے جن کا ڈیلی بیسس پہ خرچ چلتا ہے, تو وہ بسنت کو کس حوالے سے سیلیبریٹ کریں, یا وہ اپنے گھر کا چولہا کس طرح چلائیں یا بسنت کو سیلیبریٹ کریں, کیونکہ دل ہر بندے کا ہے, ہر بچے کا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بس شروع میں بھی آپ کو میں نے کہا ہے کہ جو دیہڑی دار لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, تنخواہ دار لوگ ہیں, ان کے پاس, ان کے بچوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ بازار سے 1000 2,000 روپے کی پتنگ خرید دیں اور 10-15 ہزار کی ڈور جو ہے نا وہ خریدیں. وہ نہیں خرید سکتے, اسی لیے وہ بچے جوان بھی ہیں. ابھی دیکھیں جو سکنیر میں واقعہ ہوا 25 سالہ نوجوان ہے,
माशाल्लाह बच्चा नहीं है, ठीक है, 25 साल जवान होता है बच्चा, समझदार होता है, तो वो बिजली के खंबे पे चढ़ गया पतंग उतारने के लिए, और जिससे वो जिंदगी की बाजी हार गया। इस तरह के वाकया बहुत आएंगे। लेकिन एक तरफ जहाँ पे हम हुकूमत को कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये ओपन हुई है तो फिर लोग हादसों का शिकार हुए हैं, लेकिन वो मैच्योर बंदा है जिसको ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक चीज़ है, वो जाएगा, पता नहीं वो वापस आता है नहीं आता, तो अगेन वही बात की क्रेज है, जी बिल्कुल, जो एक कीड़ा कह लें कि लोगों में खत्म था वो वापस जाग जी चुका बिल्कुल ऐसा है। अब हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि इन 3 दिनों से पहले भी कोई नहीं उड़ाएगा, लेकिन बहुत सी जगहों पे लोग जो है वो पतंगबाजी करते नजर आए हैं। अब 3 दिनों के बाद, और लोगों ने उतना पूरे साल में नहीं कमाया जितना उन्होंने 3 दिन 4 दिनों में कमाया है। 1 अरब और तकरीबन 22 करोड़ तक जो है ना ये पतंगे और डोरे फरोख्त हुई हैं। तो लोगों ने, मुझे लगता है कि जो पहले पिछले सालों में इतनी कमाइयां नहीं की वो उन्होंने इन 3-4 दिनों में कर ली। अभी खाने पीने के सामान जो है लाहौर में फूड स्ट्रीट जितने भी हैं, होटल जितने भी हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, ये लाखों करोड़ों के हिसाब से कमाएंगे। डिमांड्स बढ़ गई है ना, लोग आ रहे हैं, लोगों ने रहना है, रिहाइश करनी है, खाना पीना है, ऐसा तो ही है। सारी लेकिन आपको नहीं लगता कि होटल्स के, चले वो जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो रेजिडेंशियल एरियाज का इशू हो जाता है, वो अपनी रेजिडेंस के लिए कभी होटल्स बुक कर लेते हैं तो कभी कुछ, और जो घर वाले होते हैं वो ज्यादातर यही करते हैं कि छतों पे जाएंगे, बारबेक्यू करेंगे, लाइटिंग करेंगे, म्यूजिक होगा, तो वो एक डिफरेंस नजर आ जाता है। तो लास्ट में ये कहेंगे कि भाई बसंत मनाएं लेकिन एहतियात के साथ देखें, जिस जगह पे आपकी जान को खतरा है आप उस जगह पे ना जाएं। बिल्कुल, ये नहीं है कि आपको पतंग नजर आ रही है तो वो चाहे कोई बिजली वाली चीज है या किसी ऊंचाई वाली चीज है तो आप उसको फलांगते हुए लेने के लिए जाएं और फिर अपनी जान से हाथ धो बैठें, या अपनी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो फ्रैक्चर हो जाए, जिस तरह के अभी कुछ इंसिडेंट्स रोनमा हुए हैं। डेफिनेटली जिस तरह हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमारी CM पंजाब है उनके पास भी रिपोर्ट्स गई हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारी मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा उनके पास भी है, क्योंकि इतलातो नशरियात है ना, उनका पोस्ट भी वैसी है, तो वो सारे का सारा मामलात है, वो डेफिनेटली इस चीज़ को देख रहे होंगे कि कहाँ पे जो है वो किस किस चीज़ की कमी रह गई है, तो हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि ये जो बसंत के 3 दिन हैं बहुत अच्छे तरीके से गुजरे, बस जो जाने जा चुकी हैं या जिनकी किस्मत में कह लें कि था चोट वगैरह लगना वो हुआ है मामला, लेकिन मजीद ना हो। आप बताएं, आप लास्ट पे क्योंकि प्रोग्राम का आपको पता है कि वक्त अपने इख्तिताम को है, आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे बसंत के हवाले से कि खुशियों को मनाएं लेकिन उन चीज़ों से दूर रहें? मेरी तरफ से ये मैसेज है। मैं भी यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग बसंत मना रहे हैं एहतियात से मनाएं, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलियों का ख्याल रखें और अच्छे तरीके से हुकूमत के कानून के मुताबिक जो है ना वो पतंगबाजी करें और उसी में ही बचत है, क्योंकि हवाई फायरिंग, नशों से और केमिकल डोरों से परहेज करें क्योंकि गवर्नमेंट की जान और जो पतंगबाजी लूटने वाले हजरात हैं उनसे भी मैं तकीद करता हूं कि बराए मेहरबानी एहतियात से पतंगों को पकड़ें। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि अपनी जानों को खो बैठें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वही चीज़ आ जाती है ना कि गवर्नमेंट ने आपको फेस्टिवल दिया है एक्साइटमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है महंगाई की वजह से भी फेड अप थे, तो ये हुकूमत ने आपको खुशियां दोबाला करने का मौका दिया है, तो इसको उसी तरीके से एंजॉय करें, हर उस चीज़ से दूर रहें जो आपके लिए नुकसान का बायस बन रही है, क्योंकि जान एक ही बार मिलनी है, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है, इसको भरपूर से एंजॉय करें और हर उस चीज़ से दूर रहें जिससे ये खतरा है कि आपकी जान जा सकती है या आप इंजरी का शिकार हो सकते हैं। तो नदीम साहब, क्योंकि कल 2nd या 3rd है तो हम बसंत के हवाले से मजीद रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट हेडलाइंस उनको लेके पब्लिक के सामने हाजिर होते रहेंगे। तो अभी एंडिंग का वक्त है, तो तमाम व्यूअर्स से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।